একটা বাদর গাড়ির ভিতর ঢুকে গেছিল। लोग राम झूले के नाम से जानते हैं। आप भी राम। এখন সকাল 8:30 বাজে। আমরা হোটেলে ব্রেকফাস্ট করে এখন ঋষিকেশের উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছি। ঋষিকেশ দিয়ে আসার সময় ভারত মাতা মন্দির এগুলো দর্শন করে ফিরবো। এই যে আমাদের হোটেলে দিয়ে সবাই বেরোচ্ছে রুম থেকে। এখন স্নান করে সবাই রেডি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আবার ঋষিকেশে গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। এই যে আমাদের গ্রুপ, আমরা পেছনে বসে আছি। ঠিক আছে, চলো। আপনার টুপি পড়ে গেল, লালটা মারো। হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন আমরা এই নীর ঝর্ণার এখানে দাঁড়িয়েছি। বাদরকে কলা খাওয়ানো হচ্ছে ঋষিকেশে যাওয়ার পথে। দরজা খুলো না, ডুবে যাবে। যেসব বাদরের দল। মোবাইলটা দাও, মোবাইলটা দাও, মোবাইলটা দাও দাদা। টাইম দেবে না। এখন আমরা ঋষিকেশের দিকে যাচ্ছি। একটা বাদর গাড়ির ভিতর ঢুকে গেছিল বাদরকে কলা খাওয়াতে গিয়ে। নিচের দিকে নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দিরে এসেছি। আরে কৃষ্ণই সব। আর এখান থেকে হেঁটে যেতে 4 মিনিট সময় লাগবে। এই যে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। এই গাড়ি এটা কি নীলকণ্ঠ? হ্যাঁ, এটাই নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির। আচ্ছা, এখন আমরা নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দিরে চলে এসেছি। আর এই যে নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দিরের গেট, এখান থেকে শুরু হচ্ছে। আজকে আমাদের হরিদ্বারের সেকেন্ড ডে। ঋষিকেশে ঘুরতে এসেছি। আর তার সাথে নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দিরও আছে। এই যে নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির, আর এখানে হচ্ছে প্রবেশদ্বার। এখানে যখন প্রসাদ নেবেন সেখানে আপনারা ফ্রিতে জুতো রাখতে পারবেন। প্রসাদের এখানে 100 টাকা থেকে শুরু, 101 টাকা। আর এই মন্দিরটা দক্ষিণ ভারতের আদলে তৈরি। না আমি তো ঋষিকেশ। নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির। না না, এই যে লিঙ্গ ওই যে ছবি দেওয়া আছে না, ওই তো যে ছোটগুলো এইটা নেই, এই পাশে এই পাশে চলে আসুন, এই পাশে চলে আসুন। ওই যে সামনে দেখুন। এখন আমরা নীলকণ্ঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরোলাম। এই যে নীলকণ্ঠ মন্দিরের পুরোটা দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা হচ্ছে সিদ্ধ সমাধি। আর এটা মন্দির থেকে বেরোনোর রাস্তা। বলো যে জেঠু এসছে আবার। হ্যাঁ, এই যে জেঠু এসছে। জেঠু বলো সেই কলিযুগের জেঠু। হ্যাঁ, কলিযুগের জেঠু। এরকম মনে করে আমাদের ট্যুর চলছে এখন। আমরা রামঝুলা লক্ষ্মণঝুলার দিকে যাচ্ছি। নীলকণ্ঠ মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে গরুর দেবই মন্দির। हाँ ये ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम क्या है? ये तो नाम क्या है, तो गंगा पुल से होता है। हाँ, वो तो गरुड़ के नाम के बना हुआ है ब्रिज। এখন আমরা গরুর ব্রিজে আছি। এই যে পেছনে সামনে দেখছেন রাফটিং হচ্ছে। আর ওদিকে একটা গরুর ভগবানের মন্দির আছে, তার নামে গরুর ব্রিজ। ঢোকা যাবে।
হ্যাঁ তুই পুরো ছবি তুললে আমাকে পাঠিয়ে দিবি। হ্যাঁ 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 ভিডিও পাঠাবো। হ্যাঁ। এই যে ভিডিওগুলো করছি, হ্যাঁ এই ভিডিওগুলো এডিট করে ইউটিউবে ছাড়বো, সেই লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো। রাফটিং করছে ওই যে ঢোকা যাবে, ঢোকা ওদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে যাবে, কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু এই ভেতরের ঢুকে আবার ওই মাথা দিয়ে বেরোতে হবে আপনাদের। যেখানে ঋষিকেশে হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং হচ্ছে, এদিক দিয়ে এটা 8 কিলোমিটার হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মণ ঝুলা, আর ওয়াটার রাফটিং করতে করতে সবাই এদিকেই আসছে। इसको सब लोग राम झूले के नाम से जानते हैं, आप भी राम झूले के नाम से ही जानते होंगे। हाँ। लेकिन एक नाम और है, सामने देखो लिखा हुआ, वो देखो, क्या लिखा हुआ है दिख रहा है? हाँ शिवानंद झूला। कार पार्किंग भी लिखा है। कार पार्किंग का लिखा है। कार पार्किंग का आपसे क्या मतलब, कार तो ऊपर खड़ा रहता है, तो इसको शिवानंद राम झूला कहते हैं। अच्छा यहाँ पे 3 झूले हैं अभी फिलहाल में, चौथा बन रहा है। हाँ। वो लक्ष्मण झूला के अंदर में ग्लास का बन रहा है, कांच का झूला अच्छा अभी चालू हो गया, लेकिन उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसका ओपनिंग नहीं हुआ सही तरीके से, लेकिन लोग जाना आना उस पे। कौन मंदिर में है? वो लक्ष्मण झूला की साइड में बना, उसको बोलते हैं बजरंगी झूला, बजरंग यानी हनुमान झूला। लक्ष्मण झूला सुनो, लक्ष्मण झूला, राम झूला, सीता झूला, हनुमान झूला, 4 हो गया ना। जानकी जो वही है, जानकी झूला उसी को तो कहते हैं। अभी पार करेगा, उधर में स्वर्गाश्रम है, रामेश्वर टेम्पल है, बाबा काली कमली वाला मंदिर है, एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन है जो बहुत दुर्लभ फल होता है। ये सारी इधर का स्टोरी इतिहास सब आपको हम बताएंगे झूला पार करने के बाद मंदिर पर, ठीक है? आ जाओ। डर नहीं है तो तो कोई सपोर्ट नहीं है इसके नीचे, तारों पे रुका हुआ है, देख रहे हैं ना? ओ हाँ। अच्छा रुका हुआ है। तो हावड़ा ब्रिज होता है। এটা কি রাম, এটা কি লক্ষ্মণ ঝুলা? না এটা রাম ঝুলা, এটা রাম লক্ষ্মণ ঝুলা বন্ধ আছে। राम झूला है, लक्ष्मण झूला ऊपर है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर। এই ঝুলাটাকে বলছে রামঝুলা, এই ব্রিজটা। वो है जानकी झूला। আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে জানকী ঝুলা। রামঝুলার এই অবস্থা। दादा उधर जाएंगे, देखो यहाँ से स्टार्टिंग होती है मंदिरों का। पहला मंदिर है, इस एरिया को स्वर्ग आश्रम के नाम से बोलते हैं। स्वर्ग पूरा एरिया यहाँ से लेके जानकी झूले तक पूरा स्वर्ग आश्रम ही कहलाता है। ये पहला मंदिर है। ये एक संत हुए थे, बड़े महापुरुष संत हुए थे, उनका नाम था स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज। 12 साल की उम्र से घर बार छोड़कर इस देवभूमि के अंदर में तप करने लग गए थे। वो तपस्या भी कैसे करते थे, काला कंबल ओढ़कर, ब्लैक ब्लैंकेट। तब क्या करते थे, साधु संत महात्मा लोगों की बड़ी हेल्प करते थे। जो बद्री केदार जाते थे, काला कंबल दिया करते थे ओढ़ने को, डंडा चलने के लिए। तो तब से उनका नाम फेमस हो गया, बाबा काली कमली वाले कहने लगे। उस सामने दर्शन है बाबा काली कमली वाले, तो वो दर्शन यहीं से करेंगे आप लोग। और सामने रामेश्वर टेम्पल है, पूरी स्टोरी आपको वहीं पे मैं आपको बताऊंगा। ये छोटी मोटी जगह नहीं है, जगह को बोलते हैं उत्तराखंड, तपोवन देवभूमि, देवताओं की भूमि। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, देवी देवता इस भूमि के अंदर में तप करते हैं। हाँ, और वो ऐसे संत वो नीचे आते ही नहीं है, ऊपर पहाड़ों में, बर्फ़ में, कंदराओं में तप करते रहते हैं। वो तब पता कब आते हैं, जब कुंभ लगता है, कुंभ करने। हाँ, वो तब आते हैं, स्नान करते हैं महाकुंभ का, और कहाँ गायब हो जाते हैं, किसी को दिखते भी नहीं। वो ऐसे संत रहते हैं, मंत्र मार के किसी पे लग जाते, कल्याण ऐसे। तो ये ऋषि मुनियों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। तो तब करते करते उनके केस जमीन को टच होते थे। केस समझते हैं, चूल, बाल, तो बाल, तो केस को और ऋषि को, ऋषि माने साधु, केस और ऋषि दोनों को मिलाकर क्या हुआ, ऋषिकेश। 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा कि ये पूरा उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 किलोमीटर में ऋषिकेश डिवाइड है। अभी उस पार में जहाँ मैं आपको मिला हूँ, वो आता है डिस्ट्रिक्ट टेरी गढ़वाल। उस जगह को बोलते हैं मुनि की रेती डिस्ट्रिक्ट टेरी गढ़वाल। मतलब मुनि यानी ऋषि मुनि,
वैसे ऐसा भी कहते हैं कि उस पार में शत्रुघ्न जी ने मौन रूप में तप किया था, इसलिए इसको मुनि की रेती टेरी, मुनि की रेती टेरी डिस्ट्रिक्ट बोलते মানে हैं। কল্পনা করা। हाँ, ये क्षेत्र है स्वर्गाश्रम, यहाँ से लेके ये राम झूला तक पूरा एरिया स्वर्गाश्रम कहलाता है। ये डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, ये पौड़ी लग गया है डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में आ गए हैं। और इसी के चले जाएंगे यहाँ से घूम के मेन 2-3 किलोमीटर और आगे तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जो उत्तराखंड का राजधानी है। तो ये इस भूमि के अंदर में बड़े बड़े संतों ने तो तप किया ही है। और ऐसा कहते हैं कि चारों भाई भी तप करने यहाँ पे आते। चारों भाई कौन थे? भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों ने भी इसी भूमि के अंदर में तप किया था। प्राचीन काल में ऐसा कहते हैं जिस समय भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था। रावण कौन था? बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, ब्रह्मा जी के पुत्र का पुत्र था, उससे बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं। उसको राम जी के अलावा कोई मार ही नहीं सकता था, इतना बड़ा विद्वान था। लेकिन क्या था? चरित्रहीन था। राम जी कौन थे? चरित्रवान। इसलिए रामायण में क्या लिखा हुआ? रामचरित्र मानस। भगवान श्री राम जी का चरित्र ही उसके अंदर में दिखाया गया। तो चरित्रहीन आदमी कहीं भी सफल नहीं होता, चाहे कोई भी कैसा भी हो। चरित्रवान हर जगह सफल हो जाएगा। भगवान राम ने उसका वध किया था, तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा उनको। उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, कुलगुरु। उन्होंने बताया कि जब उनको राजपाट होने लगा, होने के बाद में कि तुम्हें एक दोष लगा हुआ है, उसको मिटाना है। तो कौन सा? कि तुमने रावण को मारा है, ब्रह्म हत्या दोष है। और वो दोष देवभूमि एक ऐसी जगह है, वहाँ पे तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ भगवान राम तप करने आ रहे हैं, तो भूमि का महत्व कितना होगा, कितना बड़ा महत्व। तो यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों ने ब्रह्म हत्या का दोष मिटाया था। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था। तो कहते हैं हमारे परिवार में अगर एक से किसी से गलती होती है तो उसकी कभी कभी सज़ा पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ जाती है। भगवान राम जब आ रहे थे तो शत्रुघ्न जी ने और भरत जी ने कहा था हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी दोष मिटाएंगे। तो चारों भाई आए। देवप्रयाग में भगवान राम ने तप किया। यहाँ से 3 किलोमीटर पे जाते हैं। बद्रीनाथ गए कभी आप? तो 75 प्रयाग पड़ते हैं वैसे। 74 किलोमीटर पे आता है देवप्रयाग, सबसे बड़ा प्रयाग है। वहाँ 2 बड़ी नदी मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी गंगा। उसी संगम पर भगवान श्री राम जी का प्राचीन मंदिर है, रघुनाथ मंदिर। रामचंद्र जी ने वहाँ पे तप किया। और लक्ष्मण झूला के अंदर में लक्ष्मण जी ने तप किया। सामने शत्रुघ्न जी ने तप किया मौन रूप में। और यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे भरत जी ने तप किया, वहाँ पे भरत जी। तो चारों भाई इस भूमि के अंदर में ब्रह्म हत्या का दोष मिटाने आए। लक्ष्मण झूले का कहानी क्या है? कहते हैं कि गंगा जी को पार करने के लिए जब उनको कोई सुविधा नहीं मिली थी, देवप्रयाग जाना था भगवान राम को तपस्या करने, तब उन्होंने लक्ष्मण जी की हेल्प ली। आगे में गंगा नदी पार करो, हमें देवप्रयाग जाना तपस्या करने। तो भगवान राम समझ गए, भगवान लक्ष्मण जी समझ गए भगवान राम परीक्षा लेने तो विष्णु जी के अवतार थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने माया का झूला बनाया। माया का झूला बाणों द्वारा झूला, सस्पेंस, तो झूला बनाया, बाणों से उनको पार किया था। पार होकर आशीर्वाद देके गए थे भगवान राम लक्ष्मण जी को कि तुमने मुझे गंगा नदी से पार किया है और इसलिए मैं तुमको खुश होकर आशीर्वाद देकर जाता हूँ। कलयुग के अंदर में जितनी भी यहाँ की भूमि सब तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध है। तो वो एरिया लक्ष्मण जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। क्या बोलते हो उस एरिया को? लक्ष्मण झूला। ऑटो में जाएंगे तो लक्ष्मण झूला बोलेंगे ऑटो वाले को, तभी छोड़ के आता वहाँ पे, वरना यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो एरिया लक्ष्मण जी के नाम से प्रसिद्ध होगी। राम जी आशीर्वाद देकर चले गए थे। साधु संत ऋषि मुनि लोग पेड़ों की छाल उतार कर टेम्परेरी लकड़ी का झूला बनाया करते। जून जुलाई के महीने में बाढ़ आती, गंगा नदी में बह जाता था। कई बार हुआ। एक बार कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ आए, वो लोग रहने वाले थे राजस्थान के थे, उनका बिजनेस कलकत्ता में, टाटा बिरला की फैमिली से थे। उन लोगों के सामने वो घटना हुई तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने सोचा हमारे पास इतना पैसा, इस पैसे को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। तब उन लोगों ने, टाटा बिरला की फैमिली से थे, उनकी माता बड़ी दयालु थी, पूजा पाठ वाली थी, तो उन्होंने 2.5 लाख चांदी का सिक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोनेट किया था। और वहाँ पर एक झूला बना, सस्पेंस हैंगिंग ब्रिज झूलता पुल, जो 1927 में शुरू हुआ था, 20 में कम्प्लीट हो गया था। 450 फीट उसका लंबाई है, 6 फीट चौड़ा है, 1200 का टन है, नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है। चलते हैं तो हैंगिंग करता था, हिलता। अब उसको 3 साल से बंद किया हुआ है क्योंकि उसका डेट एक्सपायर हो गया था, इसलिए उसको बंद कर दिया, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। दूसरा झूला बन गया है, ग्लास का, कांच का बना है। अब इसका ओपनिंग होने वाला है कुछ दिनों में। वो
पुराना वाला नहीं खोले पुना वाला बंद हो गया, वो नहीं खुलता अब। वहाँ से उसकी बगल में ये साइड वो अधिकारी नहीं है नहीं, वो ऐसे ही हो गया, बंद हो गया। उधर में लक्ष्मण झूला, एक्सपायरी इधर में राम झूला। यहाँ पे जाने आने में लोगों को दिक्कत होती, तो एक सेम लक्ष्मण झूले का नकल यहाँ पे बना के तैयार किया। पुराना वाला 1950 ठीक नहीं है नहीं होगा, वो खत्म हो गया। अगर उसको चालू करेंगे भी तो उस पर रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है। अगर उसको चालाना होता तो बंद ही क्यों करते। दूसरा, ये एरिया सारा स्वर्ग आश्रम कहलाता। ये 5 पांडव ऐसे कहते हैं स्वर्ग के लिए जब जा रहे थे तो इसी जगह पे उन्होंने विश्राम किया था। वो पहला मंदिर देखा आप लोगों ने, बाबा काली कमरे वाला, वहाँ पे विश्राम किया था। और इस मंदिर पे आके, इस जगह पे आके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शालिग्राम का शिवलिंग रख के पूजा किया था। इस मंदिर को बोलते हैं रामेश्वर टेम्पल। तो 5 पांडवों द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है ये। 5 पांडवों ने इस जगह पे पूजा किया था। रामेश्वर तो का 5 मतलब? रामेश्वर, 2 रामेश्वर में इंडिया है। एक कहाँ है, फर्स्ट वाला तमिलनाडु हाँ में। बोलिए। हाँ, और उसके बाद इस मंदिर को भगवान राम इधर में आए थे तो इसलिए इसको रामेश्वर टेम्पल सेकंड रामेश्वर हो गया। बाकी तो बाबा काली कमली वालों ने बनाया है इसमें। बाकी जैसे डोनेशन आता चला गया, ऐसी मंदिर सब ऐसे ही बनते हैं, सब डोनेशन से। उनके पांडव यहाँ पर विश्राम किया था उस जगह यहाँ पे पूजा किया था, गंगा जी का किनारा था, अभिषेक किया था यहाँ पर? जल से। इस मंदिर में अंदर शिवलिंग है, ब्लैक स्टोन का भी देखना अंदर में जाके। तो 5 पांडव यहाँ पे रुके और यहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ की साइड में स्वर्ग के लिए चले गए। तो पहले यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग द्वार बना हुआ था। अब स्वर्ग द्वार हो गया, यहाँ पे बन गए आश्रम। हजारों आश्रम है यहाँ पे, एक नहीं है। यहाँ से लेके जानकी दुर्ग सारे आश्रम ही आश्रम है। तो अब इस एरिया को स्वर्ग आश्रम कहते हैं। दूसरा, अभी सामने आप लोग स्वर्ग आश्रम में मंदिर का दर्शन करेंगे, फिर आएगा गीता भवन। नाम सुना गीता भवन का? हाँ गीता भवन, हाँ। हाँ, गीता भवन में गीता जी, हाँ, राम सुखदास जी महाराज आप लोग ने, एरिया में हाँ, गीता भवन है। उसी के अंदर में एक खास चीज़ देखने को मिले, एक ही पेज पे, यानी एक ही पन्ना है, उस पर पूरी गीता जी लिखी हुई, 700 श्लोक एक ही पन्ने पे है। और क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी आप लोग दर्शन करके आओ। हमको पता है सागर द्वार तो এটা রামেশ্বরম মন্দিরে এখন আমরা এসেছি। এইটা রামঝোলার কাছে অবস্থিত রামেশ্বরম মন্দিরে। এখন আমরা আছি গীতা ভবনের সামনে। এদিকে গঙ্গাজি বয়ে যাচ্ছে আর গীতা প্রেস, এটা হচ্ছে গীতা প্রেস ভবন। दादा गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक भंडार हुआ है, यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं। समस्त गीता सब है। श्री कृष्ण का जितना बही है सब। गौमूत्र बिक्री करो। এখন আমরা গীতা ভবনের ভেতরে চলে এসেছি। গীতা ভবনের চারদিকটা আপনাদের দেখাচ্ছি একবার। এই যে আমাদের গ্রুপে সবাই আসছে এখন আস্তে আস্তে দেখুন। গীতা ভবনের ভেতরটা আপনাদের দেখালাম, আর আমাদের লোকেরা সব পিছন পিছন আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে আসছে। रुद्रा नॉट फॉर सेल, ओनली दर्शन। क्या लाखों करोड़ों देते तब भी नहीं मिलता। क्या एक मुखी, एक एक मुखी रुद्राक्ष पता क्या होता है? एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं कि जिसको मिल गया उसका कल्याण हो जाता है, हाँ किसी चीज की कमी नहीं आती जीवन में जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष रहता है। ममता बनर्जी पेज है। भूल से अनजाने में किसी से कोई गलती होगी उसे क्षमा मिल जाती है, मान के चलो। बहुत दुर्लभ होता है। 12 साल में एक पेड़ पर एक ही आता है। शिव होता है, जिसके घर में रहता है इतनी ऊंचाई तक जाता है कोई सोच भी नहीं सकता। 3 लोगों के पास ही था, ऐसा सुना है मैंने। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के पास, हाँ दूसरा इंदिरा गांधी जी के पास, और यहाँ वो मैं आपको बंगाल दिखाऊंगा। में ममता बनर्जी के पास। उसके बाद नहीं है। মোদি এসেছিল, এখন আমরা আছি পরমার্থ নিকেতন। এই যে এখানে পরমার্থ নিকেতন কারা কারা আছে, হ্যাঁ সেই ছবিগুলো এখানে দেওয়া আছে।
এইদিকে এইদিকে सरप्राइज दे दिया राकेश कॉन्टैक्ट बंगाली ताऊजी के लगता है এখন কর্মস্থলীতে ভোজনালয়ের দিকে যাচ্ছি। এখন আমরা চলে এসেছি পরমার্থ নিকেতনের ঘাটে। এই যে পরমার্থ নিকেতনে আসলাম, এখানে ভালো খাবার দাবার পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে পরমার্থ নিকেতনের ঘাট। এই যে रेल कोरी चले मनोकामना पूर्ण वृक्ष कहते हैं इसको, कल्प वृक्ष मनोकामना। कोई भी मनोकामना बोलते हैं सामने खड़े होके तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि वो पूरा हो जाता है अगर जो विष्णु जी का ध्यान करके इसके सामने कुछ बोलते हैं तो इसीलिए इसको कल्प वृक्ष, कल्प नाम को मतलब कुछ भूल के आएगा, भूल के आएगा मौला हमको टांग लिया। आपने देखा होगा लेकिन आपको मालूम नहीं होगा इसका नहीं नहीं, महत्व क्या है। हमको ये है, हम लोग के दक्षिण सरोज जहाँ पर ठाकुर रामकृष्ण है वहाँ पर जो 5 जनवरी जी कल्पोत्तर उत्सव होता है, सब मनुष्य जो जानकारी मिलती तो कोई चार्ज नहीं, फ्री में देखोगे। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन है और हिमालय का आइए सब। जूता पहन के हाँ जूते पहन के आ जाओ। इधर से गाइड आया है तो जल्दी आओ। पंचमुखी माला से लोग आपका जप करते हैं, गले में पहनते हैं, इसका पानी डालते हैं। पानी पीते हैं तो एसिडिटी के लिए, अस्थमा के लिए, जॉइंट पेन के लिए काम आता है। ये हमारा यहाँ बैठे जाते सब लोग और दर्शन करेंगे। हिमालय का क्या होता है, कैसे रियलिटी क्या सब आपको बताएंगे। जैसे रात के समय पानी में रखते सुबह खाली पेट पानी की सुंदर पक्के के साथ उसके बाद आप देख सकते हैं कि हार्ट के लिए ब्लड प्रेशर को 108 চলে এসেছি জানকি ঝুলাতে। এই যে জানকি ঝুলা, মাঝখান দিয়ে হাঁটছি। এই যে গঙ্গাজি, এখান দিয়ে দুই সাইডে স্কুটি চলে, স্কুটি বাইক এটা চলতে পারে, 2 চাকা। এখন জানকি ঝোলার ওপর দিয়ে যাচ্ছি, আর এখান দিয়ে গঙ্গা নদীর প্রচণ্ড স্রোত। এটা হচ্ছে নিমকারলি বাবার মন্দির। ভাই থোড়া রুক গিয়ে हाँ रुके হবে কি করে না, একটা জায়গা সাইড করে দাঁড় করাচ্ছে। हाँ थोड़ा रुक जाए, जाने का नहीं है, হ্যাঁ जाने का नहीं है। उनके दाना उनके दा খোলা নেই তো, হ্যাঁ খোলা আছে তো। नहीं नहीं जाएगा नहीं, खाली तो খোলা আছে, খোলা আছে, খোলা খোলা আছে, খোলা আছে। এখন আমরা একটা বজরংবলীর মন্দিরে এসেছি। এই যে বজরংবলী মন্দির, বিশাল বড় বজরংবলী স্ট্যাচু আছে এখানে একটা। এইটা হচ্ছে নিমকারলি বাবার আশ্রম।
মন্দির, আর এখানে হচ্ছে হনুমানজির মন্দির। মন্দিরের ভিতরে ফটোগ্রাফি করা বারণ, ওই জন্য ভিতরে আর ভিডিও করা যায়নি, এখন বাইরে কি ভিডিও করছি। এখন আমরা চলে এসেছি হরিদ্বারের আরতি দেখতে। ওই যে ওখানে আরতি হচ্ছে হারকিপৌরি ঘাটে। এই যে ওখানে আরতি হচ্ছে, যাচ্ছি ওদিকে। চলে এসছি আমরা হারকিপৌরি ঘাটে চলে এসছি এখন আমরা। আর এই যে আরতি হচ্ছে, হরিদ্বারের ওই ঘাটে যারা অস্থি বিসর্জন করতে আসে তাদের জন্য। আর এইখানে স্নান করে সব ড্রেস চেঞ্জিং মঙ্গল। এখন হরিদ্বারে হারকিপৌরি ঘাটে আছি, আর ওটা যারা অস্থি বিসর্জন করতে আসে তাদের জন্য ওই জায়গাটা। আর এখানে স্নান করে আপনারা ড্রেস চেঞ্জ করতে পারবেন, মহিলাদের জন্য এই ড্রেস চেঞ্জিং রুমগুলো। হারকিপৌরি ঘাটে এখন আরতি দেখা প্রচুর ভিড় ছিল। এখন আমরা আরতি দেখে এখন ফিরছি আমার হোটেলে। এখন আমরা হরিদ্বারে সাদা মুড়ি কিনতে বেরিয়েছি। এই যে 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। ये करार वाला, ये लोग करारे वाला 100 ग्राम मिलेगा। ये करारे वाले बड़ा वाला ये हो थोड़ा मेरे में तो 100 ग्राम मिलेगा। ওদিকে হারকিপৌরি ঘাট, আমরা ঘুরে আছি মার্কেটে। আর এদিকে রঙের কাজ হচ্ছে। কি মুড়ি কত? 100 টাকা কেজি? पैकेट वाला भी एक ही दाम है। ও বলছে নরম উঠে, ও নিজেই বলছে। হাওয়া লাগছে তো নরম হবে। এখন আমরা হরিদ্বারের মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর এখানে রুদ্রাক্ষ থেকে শুরু করে জ্যাকেট, সিঁদুর সব পেয়ে যাবে নিচে। এক ইঞ্চি এখানে সব কিছু পেয়ে যাবে, যা যা দরকার এখানে রাবড়ি থেকে শুরু করে সব পাওয়া যাবে। ওই যে দাদা হোটেলে হোটেল এটা আমাদের হরিদ্বারের হোটেল। এখানে একটা ডাইনিং টেবিল আছে, আর
এখানে আপনারা এলসিডি টিভি পেয়ে যাচ্ছেন, আলমারি আছে, এখানে কিং সাইজ বেড, এখানে একটা ফোন আছে যেটা দিয়ে আপনারা রুম সার্ভিসে ফোন করতে পারবেন, এসি আছে। আর এবার আপনাদের বাথরুমটা দেখাই। ঘর অগোছালো হয়ে আছে, কিছু মনে করবেন না। এইটা হচ্ছে বাথরুম, বাথরুমে আপনাদের টাওয়েল দেওয়া থাকবে। আর এটা হচ্ছে গিজার। আর এখানে ওয়েস্টার্ন টয়লেট আছে, আর সবসময় এক্সস্ট চলছে। আর এখানে রয়েছে। আর আপনাদের আর একটা রুমে নিয়ে যাচ্ছি এখন, সেই রুমটাও দেখে নিন। এই যে আর একটা রুম, এই যে আর হচ্ছে আপনাদের বাথরুমটা দেখাচ্ছি। এই যে বাথরুম, এটা বাথরুমের লাইট কোনটা? এই যে বাথরুমের লাইট, এক্সস্ট চলছে, গিজার আছে, এখানেও বেসিন আছে একটা। আর এই টাওয়েল দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে আমার ডাইনিংটাও দেখাচ্ছি। এটা আমাদের হোটেলের ডাইনিং। খাওয়ার হচ্ছে, রুটি হাফ বাকি আছে, আর আজকে আলু ফুলকপির তরকারি আর তরকার ডাল হয়েছে। আর এই যে হোটেলের চারিদিকে ভিউ, এদিকে একটা ত্রিশূল আছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। সকালবেলা আর একবার এসে ভিডিও করবো আমি, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এখন আমরা লাঞ্চ ডিনার করতে বসবো। ঠিক আছে, দেবো এখানে রাখি আছে। না না, সব নেবো নাকি? এখন আমাদের আড্ডা চলছে, ডিনার সার্ভ হচ্ছে। কপালে থাকে মরার, এখানে মরে তাহলে তো কিন্তু এলআইসি অবশ্যই। তারপরে ওই এলআইসির অফিসার, ওই অফিসারের আমার মাথা